اور اپنی ماں، اس کے لیے کبھی کچھ تعمیر کرنے کا نہیں سوچا تم نے؟ تالیہ بالکل ساکت رہ گئی۔ تھوک نکلا اور بظاہر مسکراتی ہوئی پلٹی۔ ماں کے لیے؟ مراد اس کی طرف گھوما، ایسے کہ اس کے چہرے پہ نرمی تھی۔ تمہاری ماں کو مرے ہوئے 6 سال ہونے کو آئے ہیں۔ تم 7 برس کی تھیں جب وہ طاعون سے مری تھی۔ کیا اس کی قبر پہ جانے کا دل نہیں چاہا تمہارا تالیہ؟ پہلی دفعہ مراد کے چہرے پہ احساس کی رمق دکھائی دی تھی، جیسے دکھ کا کوئی سایہ ہو، جیسے ماضی کا کوئی شائبہ ہو۔ میں ماں کا ذکر کر کے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی بابا۔ یہ ذکر آپ کی کمزوری سامنے لے آئے گا اور آپ پتھر صورت زیادہ طاقتور لگتے ہیں۔ ایسے ہی رہا کریں۔ پھر سر جھکا کے بولی، راجا، اور پلٹ گئی۔ اسے اپنی ماں یاد نہیں تھی، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کے پاس سوچنے کو اور بہت کچھ تھا۔ سوموار کی شام ابو الخیر کی حویلی کے سامنے کھلے میدان میں میلہ لگا تھا۔ رنگ برنگی چنڈیوں سے جا بجا سجاوٹ کی گئی تھی۔ ایک جانب اونچا چبوترا اسٹیج سا بنا تھا اور سامنے قطار در قطار کرسیاں رکھی تھیں جن پہ شہر کے معززین بیٹھے تھے۔ جگہ جگہ جھلملاتے کمکموں اور مشلوں نے رات میں روشنی کا سماں باندھ رکھا تھا۔ چبوترے کے عقب میں عارضی دیواریں لگی تھیں جہاں سے ایک آدمی باری باری غلاموں کو باہر لاتا اور چبوترے پہ دھکیل دیتا۔ غلام کسی فیشن ماڈل کی طرح لمبے چبوترے پہ آگے چلتا جاتا اور سرے پہ جا کے رک جاتا۔ اس کے ہاتھوں سے پیروں تک لمبی بیڑیاں بندھی ہوتی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے حاضرین کو دیکھتا۔ کرسیوں پہ بیٹھے امرا اور رئیس اپنے اپنے کارڈ بلند کرتے اور اس کی بولی لگاتے جاتے۔ جہاں بولی رکتی وہاں فروخت کا اعلان کر دیا جاتا۔ اعلان کرنے والا ابو الخیر کا قریبی غلام محمود مرنی تھا۔ وہ ہر اعلان سے پہلے اول قطار میں ٹھاٹھ سے بیٹھے ابو الخیر کو ضرور دیکھتا تھا۔ جواب میں ابو الخیر مسکرا کے سر کو جنبش دیتا تو وہ اعلان کر دیتا۔ نیلامی کی تقریب ابھی جاری تھی۔ آغاز میں معمولی غلام اور لونڈیاں پیش کی جا رہی تھیں۔ ایسے میں چبوترے کے پیچھے جاؤ تو وہاں لمبی قطاروں میں پنجرے رکھے تھے جن میں غلام قید۔ آخری پنجروں میں سے ایک میں فاتح کھڑا تھا۔ اس نے پنجرے کی سلاخوں سے کمر ٹکا رکھی تھی اور سینے پہ بازو لپیٹے کچھ سوچ رہا تھا۔ جب پیچھے کوئی کھنکھارا، وہ چونک کے پلٹا۔ اس کے پنجرے کے ساتھ وہ دونوں کھڑے تھے، چوغوں میں ملبوس، سر پہ ٹوپیاں گرائے۔ نیم اندھیرے کے باوجود وہ ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا، ایڈم اور دالیہ۔ فاتح نے گہری سانس لی اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریبی پنجروں کے پاس لوگ منڈلا رہے تھے۔ وہاں رش سا لگا تھا۔ پہرے دار روک ٹوک نہیں کر رہے تھے۔ بولی لگانے سے قبل لوگ غلاموں کو جانچ لیں۔ اچھا تھا، ہم آپ کو خریدنے آئے ہیں توانکو۔ سیاہ ہڈ میں اس کا چہرہ پر امید سا دمک رہا تھا۔ سنہری لٹیں ٹوپی سے نکل رہی تھیں جن کو وہ بار بار اندر اڑستی تھی۔ مجھے نہیں، میری آزادی کو خریدنے۔ وہ سلاخوں کو پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے جتا کے بولا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ ظاہر ہے، آپ کو کون خرید سکتا ہے؟ اتنی رقم ہے تمہارے پاس؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ جی سر، ایڈم جھٹ بولا، سب سے اونچی بولی ہم لگائیں گے۔ اور اتنی رقم آئی کہاں سے؟ سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھا۔ میرے باپا مجھے کافی سارا جیب خرچ دیتے ہیں، میں نے بہت کچھ جمع کر لیا تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ اور ابو الخیر تمہیں پہچانے گا تو نہیں؟ اسے تشویش ہوئی۔ کیسے پہچانے گا؟ اس نے پھر شانے اچکائے۔ فاتح نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح سے چوغے میں چھپی ہوئی تھی۔ ویسے بھی بولی ایڈم لگائے گا، میں خاموش رہوں گی۔ وہ اب اس کو طریقہ کار بتا رہی تھی، مگر فاتح کی نظریں اس کے پیروں تک جو جھکی تو اٹھی نہیں۔ تالیہ رک گئی، سر جھکا کے پیر دیکھے۔ ان میں پیلے رنگ کے جوتے تھے جن پہ موتی لگے تھے۔ یہ جوتے تم نے کہاں سے لیے؟ فاتح نے نظریں اٹھائیں تو ان میں کچھ عجیب سا تھا۔ یہ؟ اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ شہزادیوں کے پاس ان چیزوں کی کمی نہیں ہوتی تو آنکھ کو۔ یہ ہاتھ سے بنے ہیں تالیہ، اور یہ ابو الخیر کا ملازم محمود مرنی بناتا ہے صرف خاص تحفوں کے لیے۔ یہ اس نے میرے سامنے ایک صندوق میں رکھے تھے جس میں بہت سے دوسرے تحفے بھی تھے۔ تو کیا وہ تحفے ابو الخیر نے تمہیں بھیجے تھے؟ اس کا انداز ایک دم پھنکارتا ہوا ہو گیا۔ ایڈم نے بے اختیار تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ پل بھر کو وہ پھیکی پڑی۔
मगर अभी भी जैसे वह अचंभे में थी। शायद, मगर तोहफे तो आते रहते हैं, और सनराव की जगह अब्बू अल खैर को वजीर बनाने के बदले में इसने रिश्वत दी है ना? वो इसकी आंखों में देखता बरहमी से पूछ रहा था। मगर आप खफा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब्बू अल खैर सिर्फ तोहफे नहीं भेजता, सोने चांदी के जेवरात भी भेजता है। और अभी तुमने मुझे कहा कि नीलामी के लिए रकम तुम्हारे जेब खर्च से आई है, मगर मुझे लग रहा है वो भी रिश्वत के तौर पर अब्बू अल खैर की दी गई होगी। वो लम्हे भर को खामोश हो गई। अगर ऐसा है भी तो हम इसे इसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने खुद ही कहा था कि जो हमें मालूम है वो हमारी जान बचाएगा, और तुमने कहा था तुम अब झूठ नहीं बोलोगी। वो अफसोस से नफी में सर हिलाता सलाखिन छोड़ के पीछे हटा। तुमने इतनी आसानी से मुझसे झूठ बोल दिया। वो बार बार लब खोलती फिर बंद कर देती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मेरे पास तफसील बताने का वक्त नहीं था, और तुमने झूठ बोल दिया। इस तरह नहीं होता तालिया। किसी भी रिश्ते और ताल्लुक में, ख्वाह वो सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप ही हो, सिर्फ सच बोला जाता है। तुम मुझे सच भी बता सकती थी। आपको मुझ पे गुस्सा है किस बात का? हाँ? इसकी आवाज हल्की सी भर आ गई। मैं भी बात नहीं करना चाहता, इसने बरहमी से कहकर रुख मोड़ लिया। वो दुख और गुस्से से कुछ कहने लगी थी, मगर एडम ने आहिस्ता से पुकारा, चलें, हमारी बारी आने वाली है। वो रुख मोड़े खड़ा था। एकदम वो इतना नाराज, इतना अजनबी लगने लगा था, जैसे अपने घर की लाइब्रेरी में लगता था, जैसे केएल में इससे बेजार सा लगा करता था। वो मलामती नजरों से इसे देखती पलट गई। कुछ देर बाद फातिह बेड़ियों में बंधा चबूतरे पे चलता आ रहा था। इसने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, पेशानी पे सब्ज पट्टी बनी थी, और चेहरा सपाट बेतासुर था। वो किसी रोबोट की तरह चलता हुआ आखिरी सिरे तक आया और रुक गया। वो सामने हाजरीन को भी नहीं देख रहा था, बस मकान के अंदाज में दूर स्याह उफक पे नजरें जमाए हुए था। महमूद बदनी चबूतरे के दूसरे सिरे पे खड़ा ऐलान करते हुए बोला, फातिह बिन रामजल। बोली शुरू होती है 500 दिनार से। क्या कोई 500 तलाई सिक्के दे सकेगा इस तनोमंद गुलाम के लिए? कुर्सियों में आखिरी कितार में बैठे एडम के करीब वो झुकी। वो फातिह ने अपना नाम दुरुस्त बताया इनको? वो झूठ नहीं बोलते, चिता लिया। वो सर झटक के सीधी हुई। एडम ने हाथ में पकड़ी छड़ी बुलंद की। 600 दिनार। छड़ी पे बड़ा सा पत्ता लगा था जिस पे एक हिंसा लिखा था। 600 दिनार। महमूद बर्फी ने जोर से कहा, क्या कोई इससे ऊपर देगा? 700 दिनार, 900 दिनार, 1000। 3-4 आवाजें बुलंद हुई। 1500 दिनार। एडम ने अपना कार्ड मजीद ऊंचा किया। बोली दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी थी। क्या कोई मजीद रकम देगा? महमूद जोश से ऐलान कर रहा था। 2000 दिनार। दूसरे कोने से आवाज आई तो तालिया ने झोंक के इस तरफ देखा। आखिरी कितार में बैठा वो सनबाओ वोंगली था। आराम से बैठा, कुछ मुंह में चबाते हुए, वो कार्ड बुलंद किए हुए था। तालिया के आईब्रो तन गए। कीमत बढ़ाओ एडम, वो बेचैनी से बोली। 2200 दिनार, 2500 दिनार। वोंगली ने दोबारा कार्ड बुलंद किया। अब की दफा अगली कितार में बैठे अब्बू अल खैर ने भी गर्दन मोड़ के इसे देखा। इसके चेहरे पे नापसंदीदगी आ गई थी, मगर वोंगली साथ में कोई फल भी खाया जा रहा था। फातिह ने उफक से नजरें हटा के वोंगली को देखा। दोनों की नजरें मिली। चीनी मोहिम जो जवाब में सिर्फ मुस्कुराया और सर को खम दिया। 3000 दिनार। एडम ने ऊंचा सा कहा और उसकी तरफ झुका। क्या इतने पैसे हैं हमारे पास? रकम की फिक्र मत करो, हम इंतजाम कर लेंगे। 4000 दिनार। वोंगली ने इत्मीनान से रकम बढ़ाई। तालिया ने पहलू बदला। 5000 दिनार। एडम को पसीने आ रहे थे, मगर वो सदा लगाए जा रहा था। 5000 दिनार। जबरदस्त। क्या कोई है जो? महमूद मरनी जोश से ऐलान कर रहा था जब ठहर गया। अब्बू अल खैर ने इशारा किया था। वो फौरन चबूतरे से उतरा और मालिक के पास आया। इसके कान में झुक के बात की हदायत सुनी और फिर ऊपर आके हाजरीन की तरफ रुख किए खनखारा। चूंकि ये मामला अब संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है, इसलिए इस गुलाम फातिह बिन रामजल की बोली हम वापस ले रहे हैं। ये गुलाम अब नीलामी के लिए दस्तयाब नहीं है। तालिया और एडम ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। हाजरीन में से हैरत और अचंभे से भरी आवाजें बुलंद हुईं।
बजाय मुकाबला बाजी और नफरत अंगेजी फैलाने के हमने ये बेहतर समझा कि इस गुलाम को एक मुकर्रर कीमत पे बेच दिया जाए। जो भी शख्स इसको खरीदना चाहता है वो 10,000 दिनार अदा कर दे और इसे ले जाए। मैं अदा कर दूंगा। एडम भी तेजी से उठा। जोगे की खुद से इसके चेहरे पर साया सा पड़ा था। लोग मुड़ मुड़ के इसे देखने लगे। मैं भी अदा कर दूंगा, वोंगली बैठे बैठे बोला। फूले गाल मुसलसल कुछ खाने के बाइस हिल रहे थे। अलबत्ता अब्बुल खैर ने बस मुस्कुरा के चबूतरे पे खड़े महमूद को इशारा किया। जवाबन महमूद किसी रटे रटाए तोते की तरह बोला, अगर दोनों फ्रीकैन मतलूबा रकम अदा करना चाहते हैं तो हम ये फैसला गुलाम पे छोड़ते हैं कि वो किसके साथ जाना चाहता है। वो फातिह की तरफ घूमा। फातिह बिन रामजल, तुम फरीक नंबर 6 के साथ जाना चाहते हो या फरीक नंबर 20 के? वो बोले लगाने वालों के फरीकों के कार्ड्स पे लिखे नंबर्स पढ़ के कह रहा था। तालिया ने फौरन एडम के कार्ड का नंबर पढ़ा। 20 नंबर। इसने बेचैनी से पहलू बदला। बेड़ियों में बंधे फातिह ने मजमे में खड़े दोनों आदमियों के नंबर देखे। एडम 20 नंबर उठाए उम्मीद और बेचारगी से इसे देख रहा था। फिर इसकी नजर सनबाव की तरफ उठी। वो एक हाथ से 2 रेयान फल खाते हुए दूसरे से 6 नंबर कार्ड बुलंद किए हुए था। फातिह ने लब खोले। मैं 6 नंबर के साथ जाऊंगा, सनबाव वोंगली के साथ। अब्बुल खैर के चेहरे पर नापसंदीदगी फैल गई, मगर इसने जब्त करके ताली बजाई। तमाम हाजिरीन तालियां बजाने लगे। सिर्फ एडम था जो हक्का बक्का खड़ा था और तालियां वो बेयकीन शल सी बैठी थी। फातिह बिन रामजल 10,000 दिनार में वोंगली को फरोख्त किया जाता है। अगले गुलाम को लाया जाए। मनादी हो रही थी। शोर बढ़ गया था। चोगे की टोपी के हाले में इसका चेहरा फीका पड़ रहा था। एडम नढाल सा वापस बैठा। ये क्या हो गया? तालिया धीरे से उठी और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। एडम पीछे लपका। जी तालिया। वो तारीख खामोश गलियों में से गुजरते जा रहे थे जब इसने डरते डरते पुकारा। तालिया की होठ सर से गिर चुकी थी। सुनहरे बाल चेहरे पे बिखरे थे और वो सामने देखती चल रही थी। फातिह साहब ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एक अरसा वोंगली के मुजस्मे से मोहब्बत की है। वो इनको यूं लगता था जैसे कोई बिछड़ा दोस्त हो। वो अपने दोस्त के पास वापस जाना चाहते हैं। बस साबित हुआ कि दोस्त दोस्त होता है और फैन फैन। मगर हम दोनों उनके फैन हैं बस एटम, सिर्फ फैन, अदना कारकुन। हम कभी उनके दोस्त नहीं बन सकते। वो तेज तेज चलते हुए बोल रही थी। चेहरा गुलाबी पड़ रहा था, आवाज रुंध रही थी। और आपने ऐसा क्यों किया? वो रुक गई, चौंक के इसे देखा। वो संजीदगी से इसे ही देख रहा था। मुझे मैं वो कहते कहते रुकी, फिर सर झटका। जो मेरे मुंह से निकला मैं बोलती गई। अब क्या इनको तफसील बताती कि कहाँ से आई रकम? मगर इसमें कोई इतना खफा होने वाली बात तो नहीं थी कि वो यूं करते मेरे साथ। आपने उनसे झूठ बोला था चेतालिया। मैंने जान के ऐसा नहीं किया। बस बस जो मेरी सोच में आया मैंने बोल दिया। बस आपकी सोच में ही नहीं आया वो जवाब, इसलिए आपने वो दिया। क्या मतलब? अब जानती है इंसानों और जानवरों में किस अज़ू का फर्क होता है। मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है एडम। इसने उंगली से माथे पे दस्तक दी। दिमाग, ये तो जानवरों में भी होता है। इसने सीने पे बाजू लपेटे और आंखें तीखी करके इसे देखने लगी। दिमाग नहीं, दिमाग का सामने वाला हिस्सा, फ्रंटल लोब। इंसान की फ्रंटल लोब होती है, पेशानी के अंदर का हिस्सा। जानवर इससे महरूम होते हैं। वो लब भींचे इसे देखती रही, बोली कुछ नहीं। जब आपकी आंख कुछ देखती है तो इस फ्रंटल लोब को पैगाम भेजती है। इसने आंख से पेशानी तक लकीर खींची, गोया रास्ता मुतय्यन किया। फिर फ्रंटल लोब इस बात को सोचती है और पैगाम भेजती है पिछले हिस्से को। उंगली माथे से सर के पीछे ले गया। पिछला हिस्सा हाथ को हुक्म देता है कि ये काम करो या ठहर जाओ। उंगली पिछले हिस्से से दूसरे हाथ तक ले गया। यूं हम वो काम करते हैं या सब्र करके खुद को रोक लेते हैं? तो ये कि जानवरों में ये फ्रंटल लोब नहीं होती। उनकी आंख जैसे ही कुछ देखती है डायरेक्ट पिछले हिस्से को पैगाम देती है। वो हाथ को हुक्म देता है और जानवर हर शय चीर फाड़ कर देता है, क्योंकि वो इस बात को पेशानी तक लाता ही नहीं है। वो इसको प्रोसेस ही नहीं करता, इसको सोचता ही नहीं।
वो बस पुतलियां सकोड़ेस को देखे गई। इंसान हर बात फ्रंटल लोब के पास लाता है, इस पे गौर करता है, मगर जब कोई काम आदत बन जाए तो आंख उसको देखते ही पेशानी को पैगाम पहुंचाने के बजाय डायरेक्ट पिछले हिस्से को पैगाम दे देती है, जो हाथ को कहता है कि कर डालो और हाथ कर डालता है। ये सारे अज़ाब पेशानी को बाईपास कर जाते हैं, वो शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे हम कमरे में दाखिल होते ही आदतन स्विच बोर्ड पे हाथ मार के लाइट चलाते हैं, यूं आदतें बनती हैं। मगर फिर इसने गहरी सांस ली। कुछ कामों में दिमाग के पिछले हिस्से को मजा आने लगता है, वो पेशानी को बाईपास करने लग जाता है और वो काम हमारी एडिक्शन बन जाते हैं। लत, नशा। क्यों हेरोइन एडिक्टेड या शराबी या इंटरनेट पर गलत चीजें देखने वाले इन आदतों को छोड़ नहीं पाते? क्योंकि इनके अज़ाब वो काम करते वक्त पेशानी को स्किप कर देते हैं। वो इसको सोचते नहीं, उससे पूछते नहीं, इस बात को प्रोसेस ही नहीं करते। इसको कंपल्सिव रवैया कहा जाता है, बिना सोचे समझे आदतन कर डाले जाने वाला अमल। तुम कहना चाहते हो कि मैं कंपल्सिव लायर हूँ, वैसे घूरते हुए बोली। चेतालिया, इसने गहरी सांस ली। आपको कहानियां गढ़ने की इतनी आदत हो गई है कि आप बिला जरूरत झूठ बोल देती हैं। अब वॉन फाते को आप सच भी बता सकती थी, मगर आपको लगता है कि सच कोई समझेगा नहीं। सब कंपल्सिव लायर्स को यही लगता है। ये बुज़दिली है, सच बहादुरी है, खुद एतमादी है। एडिक्शन का बेहतरीन हल विल पावर इस्तेमाल करना है। हर बार पेशानी इसने माथे पे उंगली से दस्तक दी कि सामने मामला रखना है और इस मामले में सोचना है, नफा नुकसान, फिर इसको करना है। खुद को गलत कामों से रोकने का यही तरीका है। अगर आप चाहती हैं कि अपनी इस आदत को बदलें तो आपको अपनी फ्रंटल लोब को इस्तेमाल में लाना होगा। यानी मैं जो भी कर रहा हूँ, आखिर में तुम दोनों के नजदीक में एक झूठी और बददियानत चोर ही रहूंगी। थैंक यू एडम। दुख और गुस्से से बोलती वो पलटी और तेज तेज एक तरफ बढ़ गई। एडम गहरी सांस लेकर इसे जाते देखता रहा। वो अंधेर गली में आगे बढ़ती जा रही थी और उसके सुनहरे बाल होठ से निकल के उड़ उड़ रहे थे। 4 अरबी नस्ल घोड़ों का वो मुख्तसर सा काफिला मलाका की गलियों में आगे बढ़ रहा था। पिछले 3 घोड़ों पे गुलाम सवार थे और पहले की लगाम वॉन फाते ने थाम रखी थी। इस पे फरबी सा फूले गालों वाला वोंगली सवार था। लंबे बाल छोटी सूरत बंधे थे और रात के इस पहर भी चेहरे की चिकनी जिल्द चमक रही थी। वो गाये बगाये लगाम थामे नए गुलाम को भी देख लेता था। फाते का चेहरा स्पार्ट था और वो मशीनी अंदाज में सारे काम सर अंजाम दे रहा था। इसके अंदाज में वोंगली के लिए शनासाई की कोई रमक तक न थी। गली के वस्त में पहुंच के वोंगली ने घोड़ा रुकवा दिया तो फाते ने नजर उठाई। सामने एक बड़ा सा फाटक था, सुर्ख फाटक। इसका सांस लम्हे भर को थम गया। 3 खजीनों का मस्कन, सनबाऊ का घर। वो नए दौर से मुख्तलिफ था। नए दौर में इसके घर का दरवाजा असरा ने बनवाया था और सामने गली थी और गली के दूसरी तरफ दुकानों की कितार। मगर इस कदीम दौर में सनबाऊ के घर के सामने का इलाका कई कोस तक खाली सब्जाजार पर मुश्तमिल था। दूर दरख्तों के झुंड भी नजर आते थे। इस घर के साथ कितार में ऐसे दूसरे कई घर भी बने थे और वो सब नए दौर से बड़े नजर आते थे। सनबाऊ घोड़े से उतरा तो फाते ने लगाम छोड़ दी। 2 गुलाम घोड़े लिए पलट गए। फाते और एक गुलाम इसके साथ अंदर आए। दरवाजा अबूर किया तो सामने राहदारी सी थी। वो बिल्कुल गुमसुम इधर देखता राहदारी से गुजर के अंदरूनी बरामदे तक आया, जिसके आगे चौकोर सहन बना था। दूसरे गुलाम ने जल्दी जल्दी चंद मिशलें रोशन की तो अंधेरे में उजाला सा हो गया। सनबाऊ अपने कमरे में चला गया था और वो बरामदे में मबहूत सा खड़ा हर शय को देख रहा था। बरामदे में आतिशदान के साथ खाली कुर्सी रखी थी, ऐसे ही अजरा ने नए दौर में रखी थी। सहन के एक कोने में कुआं बना था और दूसरा कोना, फाते की नजरें उस तरफ गईं, वो खाली था, वहां कोई मुजस्मा न था। वो धीरे धीरे चलता सहन के वस्त में आ रुका। कोई तिलिस्म सा था इस घर में। ये उसके घर जैसा बिल्कुल न था। रंगो रोगन, फर्नीचर, पौधे सब मुख्तलिफ थे, मगर ये उसके घर जैसा ही था, वैसा ही पुरफसूम और पुरसरार। फाते बिन रामजल नाम है तुम्हारा? वो बेसाख्ता पलटा। बरामदे के सतून के साथ सनबाऊ आ खड़ा हुआ था।
लबों में सिगार दबाए वो दिया सलाई से इसको सुलगा रहा था। जी मालिक। इसने सर को खम दिया मगर नजर न झुकाई। ये उसका झुक के भी ना झुकने वाला अंदाज था जो हर दफा की तरह सनबाव को आज भी बहुत अछूता लगा था। जानते हो तुम्हें इतनी कीमत दे के क्यों खरीद लाया हूँ? नहीं जानता मालिक। सनबाव ने गहरा कश भरा और सगार बाहर निकाल के तारों भरे आसमान को देखते हुए मुंह से धुआं छोड़ा। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। अल्लाह फरमाता है, एहसान का बदला सिवाय एहसान के और क्या हो सकता है भला। मैं शुक्रगुजार हूँ मालिक। सनबाव चंद लम्हे उसे देखता रहा। सिगार का किनारा सुर्ख दहकता रहा। तुमने मुझे मतला किया था कि मेरे शोरबे में जहर है। मुझे तुम्हारी इस वफादारी की खसलत ने मुतासिर किया और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब मुझे बताओ कि अबू अल खैर मुझे क्यों मारना चाहता था, और ये सब इसकी ईमा पे हुआ था ना? मालिक, मैं नहीं जानता आप क्या कह रही हैं। गुलाम सपाट खड़ा था। सनबाव ने ताज्जुब से आईब्रो उठाया। तुमने मुझे जहर के बारे में मतला किया था और मैं अपने साबका मालिक की कोई बुराई आपसे बयान नहीं करूंगा मालिक। ये मेरे अदाब के खिलाफ है। सनबाव ने गहरी सांस ली और अफसोस से इसे देखा। मैंने तुम्हें सोने का एक ढेर दे के खरीदा और तुमने पहले ही रात मेरी हुक्मदुली कर दी। अंजाम जानते हो इसका? वो कुएं के साथ खड़ा था। इस तारीख कदीम से ने इस बात पे हल्का सा मुस्कुराया। वफादारी। आपने कहा आपको मेरी वफादारी ने मुतासिर किया मालिक, जबकि आपकी जान बचाने का अमल इंसानी हमदर्दी के जुमरे में आता है। और जो अभी आपने सब कहा वो हुक्म नहीं, इम्तिहान था। आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे और मैं इस इम्तिहान में पूरा उतरा हूँ। क्या मतलब? आप जांच रहे थे कि आया मैं अपने साबका मालिक की बुराई बयान करूंगा या नहीं। तो जो वफादारी आपको मेरी पेशानी पर सख्त नजर आई थी, जिसको पढ़ के आपने मुझे खरीदा, इस वफादारी को हल्का मत जानिए। अगर आज साबका मालिक की बुराई नहीं कर सकता तो कल को आपकी भी नहीं करूंगा। आप मुझे वफा के हर इम्तिहान में पूरा पाएंगे। सनबाव बरामदे से एक कदम नीचे उतरा तो चेहरा आधे चांद की चांदनी में रोशन नजर आया। इस पे मुस्कुराहट फैली थी। मेरी क्याफा शनासी, चेहरे पढ़ना कभी गलत नहीं होती। फातिह, मुझे खुशी है कि मैंने दुरुस्त इंतखाब किया है। अब तुम सो जाओ। सुबह नमाज फजर के बाद से काम शुरू करना होगा तुम्हें। वो मुड़ने लगा तो फातिह बोल उठा, आप एक अजीम आदमी है मालिक। फरबीह चीनी सफारतकार ठहरा और पलट के हैरत से इसे देखा। तुम मुझे कितना जानते हो? गुलाम सादगी से मुस्कुराया। आप एक जंगी कैदी के तौर पे चीनी शाह के दरबार में लाए गए थे। वहां आपको गुलाम ताइसियान बनाया गया था। आपने बरसों शाही चीन की खिदमत की। आप शाह के वफादार गुलाम हैं। यहाँ तक कि अपनी बेटी योन सूफू को शादी के लिए रुखसत करते वक्त भी शाह ने आपको इनके साथ भेजा। आप मुल्क मुल्क घूमे हैं और चाय के जंगलात से आपको इश्क है। इसके अलावा आपने 7 बहरी सफर किए हैं जो तारीख में याद रखे जाएंगे। 6, मैंने 6 सफर किए हैं। फातिह ठहर गया। रात एकदम सोगवार हो गई। आप 7वां भी करेंगे मालिक। अच्छा, मुझे तो समंदर में उतरे जमाने बीत गए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे भी पेशानी की लकीरों में छुपा मुस्तकबिल पढ़ना आता है, मगर मैं चाहूंगा कि आप वो 7वां सफर कभी ना करें। क्यों? वो चौंका। इन सवालों के जवाब नहीं पूछने चाहिए जो अगर हमें मालूम हो जाए तो बुरे लगेंगे हमें। सनबाव अपनी छोटी छोटी आंखों से इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करता रहा। मुझे जमाने हुए एक भक्षु ने कहा था कि मुझे समंदरी सफर नहीं करने चाहिए। इस दुनिया में मेरा आखिरी सफर भी समंदर में होगा, जहां से मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या वाकई ऐसा होगा? फातिह ने जवाब नहीं दिया। खामोशी से इसे देखता रहा। हाथ कमर पे बांधे थे और आंखों में सारे जवाब तहरीर थे। मगर खैर, तुम्हें मुस्तकबिल का क्या इल्म? सनबाव ने मुस्कुरा के सिगार फेंका, अंगारे को जूते से मसला और फिर इधर उधर ताइराना नजर डाली। तुम कोई भी कोना ले सकते हो सिवाय इस बरामदे और मेरे कमरे के। सारा घर अपना ही समझो। फातिह ने गर्दन उठा के बलाई मंजिल के इस कमरे की खिड़की को देखा जो सहन में खुलती थी।